Right. We will wait 5 more minutes for if some more participants wants to join, and then we'll begin the session. In the meantime, if some of the participants who were available yesterday, अगर वो कोई question पूछना चाहते हैं regarding yesterday lesson, they are more than welcome. या अगर कोई और भी question है उनके mind में, तो they can, they are welcome to ask. And then we'll start our session at 7:45. Assalamu alaikum. May I just want to ask a question? I didn't attend the previous class. Kindly elaborate the important points of the previous class that will further help me to attend this session nicely. Thank you. Yes, sure. जो last lesson है उसका आज से link नहीं है, but definitely it was important. The last session was previously focused on early years. Early years is in Pakistan. It is limited till second grade. उसमें हमने discuss किया था intentional based teaching. Intentional based teaching उसको कहते हैं कि whenever we are entering in the class, we have proper lesson plan in our mind that Sorry for the disturbance. उसमें ये होता है कि हमारा intentional teaching में ये होता है कि we are focused on what are the learning objectives, what are the learning outcomes और क्या methodology है which we will be following in the class. और उस lesson plan के ऊपर हम अपनी observation भी करते हैं, हम students को note भी करते हैं, and then we write the reflection that how did it go. एक हमने ये डिस्कस किया था, and then we discuss a different sort of methodology that is known as inquiry based learning. उसमें ये होता है वो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, अगर बच्चे कोई भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ दे आर आउट इन अ ग्राउंड और उससे रिलेटेड अगर वो कुछ नोट करते हैं तो वी कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, लाइक अगर इफ दे सी अ worm in the soil or somewhere, and we can ask them what is this, or what do you think, where it lives and what it eats, like inquiry based question. We tend to develop the critical side of the brain, and then we discuss about the observations. Okay, it's very important, especially in early years. As an educator, we need to observe our kid. अब बहुत स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम सबको ऑब्जर्व कर सके, लेकिन हमें ये करना है कि एटलीस्ट हर लेसन में हम एटलीस्ट 2-3 किड्स को ऑब्जर्व कर लें, ताकि हमें याद हो कि जब उसने स्टार्ट की है और एट द एंड ऑफ द टर्म वेयर ही इज लाइंग और क्या प्रोग्रेस है. With early years, it's very difficult. आप at the same time formal structured observation नहीं लिख सकते. So what I used to do, I used to keep sticky notes in my pocket or right in front of the desk. जब भी मुझे कुछ different लगे कि अच्छा किसी बच्चे ने क्लास में participate किया है और अच्छा कुछ कर है, तो I can quickly write it down on a sticky note और फिर उसको formally मैं कहीं पे जो हमारा structure template है उधर present करते हैं. So कल का जो बेसिक कंक्लूजन था वो यही था कि जब भी आप किसी भी लेसन प्लान में जाएं, यू हैड प्रॉपर लर्निंग आउटकम्स इन योर माइंड, कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पास व्हाट सॉर्ट ऑफ किड्स यू आर हैविंग, देयर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ किड्स, आप उनको कैसे डील करेंगे एंड व्हाट आर द प्रॉपर methodologies you will be using. Okay. Okay, thank you. मुझे एक और क्वेश्चन ये करना था कि जी जी. are there the like different teachers that are using inclusive pedagogy in their learning methodologies or in their learning patterns or in their planners or etc. You Or want you like want to ask about the different methodologies that are being used? no, I just want to ask that in are they using like inclusive pedagogy in their
टीचिंग मेथड्स कि वो लाइक हम जितना लाइक एसडीजी गोल को अचीव करने के लिए हम इंक्लूसिव पैडागोजी हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम करते हैं ना, तो उसके लिए मैं पूछ रही हूँ जिस तरह से हम अगर फॉर एग्जांपल आप अर्ली या चाइल्डहुड में पढ़ाते हैं या आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो आपने ये नोटिस किया है कि लाइक टीचर्स जो हैं वो इंक्लूसिव पैडागोजी पे काम कर रहे हैं। अर्ली चाइल्डहुड में तो ऑलरेडी काम काफी ज्यादा हो रहा है इंक्लूसिव पैडागोजी पे, बट आई जस्ट वांट टू आस्क कि आपने भी अपने अराउंड देखा है कि लाइक आउट ऑफ द कंट्री भी या पाकिस्तान में अगर आप जब थी या आप पढ़ाते हैं तो आपने देखा हो या डिस्कस किया हो कहीं कोई इंक्लूसिव पैडागोजी पे काम कर रहा है, और अगर कर रहा है तो वो फिर उसको वो किस तरीके से एलैबोरेट करता है, काइंडली प्लीज मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके, जस्ट कमिंग बैक टू इट। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल इवन इन पाकिस्तान हर इंस्टीट्यूट और हर सिस्टम भी जो है ना वो डिफर करता है। ओवर हेयर टिल 5 और 5.5 ईयर ऑफ एज वी हैव डे केयर्स, वी हैव प्री स्कूल्स, प्रॉपर प्री स्कूल स्टार्ट नहीं होते हैं। एंड इन यहाँ पर इट इज़ कम्प्लीटली the study is dependent on play-based learning, hands-on experience, inquiry-based learning, and then intentional teaching. Intentional teaching हर दिन होती है, लेकिन it differs कि कैसे हम उसको inculcate करते हैं। बाकी early years के तो बहुत ज़्यादा जो different methodologies है, it also depend upon the type of kids you are having in the class. Her, at least her class में there are some challenging kids. Cultural diversity is there, and then age difference is there, and then there are slow learners and gifted learners. और उसके साथ साथ फिर जो STEM है वो अब बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया। जो आज का लेसन है इट्स ऑल अबाउट STEM, so we will be discussing STEM in detail. लाइक डिफरेंसेस आपने भी बात की ना कि कल्चरल डिफरेंस होता है, तो कल्चरल डिफरेंस को आप किस तरीके से फिर लाइक आप अपनी मेथोडोलॉजी को किस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो उस कल्चरल डिफरेंस को एक तो मर्ज भी करे, अडैप्ट करे और बच्चों को फैसिलिटेट करे फॉर द फर्दर लर्निंग के लिए। If I am having a group of 10 students, उन 10 students में अगर मेरे पास 2 Muslims हैं, 2 Indians हैं, and let's say rest are Aussies, different cultural background से they are coming. तो we try कि जो भी उनके फेस्टिव्स हैं we deliver a lesson और we try to celebrate it. For example, अगर ईद आ रही है तो ईद से related activity हम कराते हैं, रमज़ान based. If there is a Christmas, so we'll decorate and introduce Santa. और फिर जो बच्चे उस related culture से आ रहे हैं हम थोड़े उनको in the circle time we just try to bring them in front और उनके थ्रू हम थोड़ी ज़्यादा information लेने की कोशिश करते हैं. So we try to use all the festivals over here. और उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट भी कल्चर है तो हम उसके कल्चर बैकग्राउंड के फ्लैग्स हम क्लास में लगा देते हैं, वो लेसन में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। एंड देन द वे ऑफ देयर ग्रीटिंग्स वी कैन पुट देम ऑन द बोर्ड एंड व्हेनेवर दैट किड इज कमिंग सो वी कैन ग्रीट with those things. जब उनका लंच टाइम हो रहा है, टेबल टाइम हो रहा है, तो we can even ask, okay, what did you get in your lunch, or what do you call this thing in your culture, like unintentionally हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ग्रीटिंग्स में, उनके लंच में। And then in every month we have parent, children and the educator meetings where we emphasize parent that at least they share some stories regarding their culture. ओके, थैंक यू सो मच। एंड एक्चुअली यही चीज़ मैं पूछना चाह रही थी कि ये चीज़ फिर आपकी इंक्लूसिव पैडागोजी में आती है कि जो आप Mm-hmm. इंक्लूसिवली जो है वो स्टूडेंट को डील करने के लिए आप यही पैडागोजी Mm-hmm. को यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. I hope the answer fulfilled the requirement. Any more questions for today before we begin the next session? Okay, moving on to the today's topic. It's STEM. STEM, maybe is any one of you is aware or is already using STEM in their activities or in their lesson plannings? Can we move on to the next slide, please? STEM is a short form. STEM तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी 5, 6 or even before that introduce हो गया था. STEM is an acronym for science, technology, engineering, and mathematics. और इसका completely it has nothing to do with the age group.
As an educator, we are advised to use STEM in every level. अब STEM होता क्या है? हम कोई भी लेसन प्लानिंग कर रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एट लीस्ट इनमें से कोई एक कैटेगरी को अपने लेसन प्लान में यूज़ करें, चाहे हम सिंगल हैंडेडली उसको यूज़ कर लें और इवन वी कैन हैव अ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच हम उसको कहते हैं वेयर मोर देन वन मॉड्यूल लाइक science or maths are working together to achieve a common outcome. It should be dependent upon the type of the kid you are having in the class, their level of interest, their level of brain development. So it's a way of teaching children to explore, question, build, and understand the world around them through play and guided activities. अभी आज से कुछ साल पहले देखें तो बहुत ट्रेडिशनल सिस्टम है कि टीचर आते हैं बोर्ड पे आंसर लिखते हैं और बस बच्चों को कहते हैं ओके यू आर सपोज टू फॉलो दैट एंड एवरीथिंग बट नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग. Now we try to focus and build the critical side of the brain because हम बच्चे को prepare करते हैं कि कल को जब वो normal world में जाए तो he should be able to deal with the things. अगर कोई बच्चा शॉप पे जा रहा है तो he should have the knowledge of currency, money, things and how these things work. So from the traditional perspective, we are moving one step ahead that is known as STEM and it's very important in early years कि हम इसको अपने lesson plan में use करें. Why it is important? Sorry for the disturbance. I am having kid by my side. It's okay. Sorry, I'll just be back in a minute. In a meanwhile, you can go through the slide. Okay, thank you. Sorry. अच्छा, STEM इसलिए भी important है because it builds curiosity and love for learning. I still remember there was a kid in my class. He was like 3 years old, 3.5 probably, or 4 maybe. तो हम उनको basic alphabets करा रहे थे ABCD. So he was holding his pencil and I asked him, okay, can you please try to write? And he was like, teacher, मैं क्यों लिखूं? So sometimes you face these sort of questions कि हमें उनको explain करना है कि why learning and writing is important for you, rather being harsh on them. No, you're supposed to write it, you are supposed to do it. So it's very difficult for them. So we make learning a fun and experienced based, play based experience for them. Let's move on to the next slide. And then just randomly, I will be discussing every part of STEM with an example. You all are welcome to share your examples that you are using. That you are using in your methodology. Can we move to the next slide? The next slide is S, science. Science has a lot of activities. You can do evaporation, ice melting, rainbow volcanoes, introducing of primary and secondary color. Just like I have mentioned one activity, sink or float. You can always bring it up in the class and put a lot of things. Or you can ask the students to walk around or bring anything from their geometry and put them in the water to see whether it's sinking or floating and just giving them the concept. अब इससे होगा क्या कि the children will be able to make prediction. अब उनको नहीं पता होगा कि अगर वो इरेजर लेकर आ रहे हैं whether it will sink or float. तो जो बच्चे को हम खुद right और independence देते हैं to do something, so that concept tend to stay in their mind for a longer period of time. आपने खुद देखा होगा अगर if there are females and they are cooking food, no matter how many times you have watched a recipe, you have listened it for someone else, लेकिन जब तक if you are not cooking it by yourself, आपके mind में वो उस तरह नहीं रहता. तो it's very important कि बच्चों को हम एक chance दें कि वो खुद observe कर सकें कि ये क्या हो रहा है.
Anybody of you wants to share any science activity that you have implemented in your class and what was the outcome of it? All right, that's fine. If you have not, you will be getting a lot of chances to implement. And trust me, if you start making activities a part of your lesson plan, आप खुद देखें, as an educator, you will be enjoying too, and the kids will also be having fun. Moving on to the next category of STEM, that is technology. Technology is rapidly changing our world and it is becoming very important for everyday life. अब technology is limited to different institute. बहुत as I was aware, Beacon House में iPads were available for the kids to use individually भी. अभी हम बहुत सारे schools में सिर्फ computer है, but there is big screen जो बहुत सारे बच्चे देख सकते हैं। हम हमेशा बच्चों को वीडियोस दिखा सकते हैं और हम कोई भी इंटरेस्टिंग अगर टैब्स अवेलेबल हैं, we can give them that. If we are having computers, we have a lot of applications that we can use in their life. For example, Lingo Kids. Lingo Kid is a very good application जहाँ पर spellings और कलर्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो once in a month or twice in a month, being a different, हम अपनी different activities और technology introduce करवा सकते हैं in our lesson plan. It will have a good impact on the kids. और वो हमेशा excited भी होते हैं for the computer class. If you have observed the kids, any age group, they are always very excited to go to the computer and get a command and use it. वैसे वो computer पे इसलिए भी excited होते हैं because they have all the command in their hands. They fully enjoy drawing and expressive themselves. Moving on to the next, that is engineering. अब engineering ये नहीं है कि specifically we have to make something electronics of anything. Engineering में कुछ भी आ सकता है जहाँ पे simple example ले लें, like build a bridge with blocks. When the person or the child is building a bridge with the blocks, he should be able to understand the concept of balance, trial and error method होगा कि कितना उसको height चाहिए, weight चाहिए, and then बहुत सारा, it will help the children to design, test and revise, planning, creativity and persistence. अगर वो block से कुछ बना रहा है, it keep on breaking and then you encourage him to keep on trying, तो it develops persistency और उसका खुद ही logical जो brain है वो develop होगा कि how to balance these things. Moving on to the last part of the STEM, maths. Maths, very clear by the name. Can we move to the next slide? Maths में we can introduce number, numeracy. Maths is a topic जो कि आप हर time बच्चों के साथ inculcate कर सकते हैं. For example, if there are stairs, when they are climbing up or going upstairs, you can always start by counting the numbers like 1, 2, 3. Kids are enjoying when they are having colors in their hand. You can always ask how many colors. और आप randomly किसी को बच्चे को भी कह सकते हो, can you please help me and read how many kids are there in the class? Let me read a question. Color mixing activity through simple objects like paint and glass at different colors and observe the new color. It's practical. Yes, it's very good. It's making of secondary color from primary colors. This is very interesting activity और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा enjoy करते हैं. और इसी activity को for example अगर मैंने extend करना हो, आज इस activity को भी मैं 2-3 days prolong कर सकती हूँ. For example, day 1, I can have an activity of primary colors, using primary colors to make a secondary colors. और नेक्स्ट डे अगर मैंने थोड़ा सा और करना है और साइंस को रिलेट करना है, तो व्हाट आई कैन डू, मैं थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट भी कर सकती हूँ कि बच्चों से कहूँ that's the clay you are supposed to make a volcano, and then we put the colors inside using a baking soda and the fumes will come out and that there they can see a chemical reaction. तो हम इस तरह उन अपने lesson plan को extend भी कर सकते हैं. हमेशा there is a extension for the lesson plans. And one more activity suggested is use glass prism for showing rainbow colors to them. Very interesting. They will love them. So it's just like 5 minutes of your effort or such activities make their whole day. आप हमेशा note करें at the home time when their parents come, they will be very excited. They will be discussing what they have learned throughout.
So it's very important to inculcate any sort of activity you want by using these categories. And you can even use 2 modules, developing holistic approach for them. Moving on, very good examples. Thank you for sharing. Moving on to the next slide. अच्छा, ये मेरा आज का वैसे टॉपिक मैंने बहुत स्टार्ट हमेशा सोचा नहीं था, बट नाउ आई फेल्ट देयर इज अ बिग नीड कि वी शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम आ जाता है हमारी टेक्नोलॉजी में। इन अगर हमारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ओनली देन वी विल बी एबल टू कन्वे इट to the parents that what impact screen time is having on our mind. Screen time as suggested by the name कि बच्चे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑन टीवी, टैबलेट्स, कंप्यूटर एंड फोन. It is highly suggested not to give any screen time until the kid is 2. At least 2 years के बाद अगर आपकी बहुत ज़्यादा आपको important लगता है तो you can start giving it for like 30 minutes. I am discussing this knowledge I am giving because many of you have kids, and if some of you do not, you can always share with the parents. It's very important. Screen time से completely बच्चे का behavior, quality और उसका माइंड, उसकी कॉग्निशन, थिंकिंग सब कुछ डेवलप होता है। अगर हम हमेशा उसको स्क्रीन टाइम देके बाउंड कर देंगे, दैट kid will never be able to understand and enjoy the world by himself. अब इसमें डिफरेंट टाइप आती हैं। पैसिव, फॉर एग्जांपल जस्ट वाचिंग वीडियोस, हम सिर्फ फोन दे देते हैं, कोको मेलन और जैसे इतने कार्टून्स हैं, एंड द किड्स कीप ऑन वाचिंग, एंड देन दे आर इंटरैक्टिव, जैसे educational apps or video chatting. As I suggested, there are a lot of apps available. For example, Lingo Kids, Han Academy, a lot of different educational apps are there. So we need to understand what is screen time, what are their limitations, और कितना हमें किसी को provide करना चाहिए. Before coming on to the next slide, do you think if a kid is like in one class, or let's say if the kid is like 5 and 6 year of age, how much screen time he or she would be having in a day? और आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि स्क्रीन टाइम इम्पोर्टेंट है, देना चाहिए? You can always unmute your mic and contribute. जी देना चाहिए बच्चों को स्क्रीन टाइम। किस किस एज ग्रुप के लिए? सारे ही हों तकरीबन, लेकिन एक एक लिमिटेड होना चाहिए। बिल्कुल अर्ली एज नहीं, 3 साल तक तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद की एज में जो है, जब बच्चे स्कूल गोइंग हो जाता है, तो 1 घंटे का तकरीबन स्क्रीन टाइम होना चाहिए पूरे दिन में। थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर सुबह और शाम 1-1 घंटे का। And why do you think it is important? बिकॉज़ के बच्चे को ज़रूरी है कि माशरे में जो सोशल इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है बच्चे का। जो सोशल सोसाइटी नेटवर्क जो हमारा बन गया है, वो बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बट शुड बी इन लिमिट के पेरेंट्स उसके साथ बैठे हुए हों। पेरेंट्स को पता हो कि वो क्या चीज़ देख रहा है इस वक़्त। And what about the content? What about the content or anything they are watching? जैसे बच्चे को कोई एजुकेशनल चीज़ दिखाएँ, कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ दिखाएँ, जैसे एनिमल्स के बारे में डिस्कवरी की नॉलेज बताएँ, या जो आजकल एनवायरमेंटल सिनेरियोज़ चल रहे हैं, खासतौर पे ग्रेवीज़ जो आजकल इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो इतना बड़ा सवात में हादसा हुआ है, क्योंकि ग्रेवीज़ आजकल जो है ओनली फॉर द फैंसी फिटिंग और लुकिंग योर होम लेविश, तो ये ग्रेवीज़ यूज़ किए जा रहे हैं। ग्रेवीज़ की कमी की बाइस की वजह से इतना वाटर वॉश हुआ, और वो जो है एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई उनकी, तो Right. सैलाब फ्लडिंग हुई। और दूसरा एस्ट्रोनॉमी के हवाले से बच्चों को इन्फॉर्मेशन बहुत होनी चाहिए आजकल। ये चीज़ें Sorry, बच्चे देखते हैं। sorry, can you repeat the last point? किस last point में आपने क्या एस्ट्रोनॉमी, बोला? एस्ट्रोनॉमी, Astronomy. एस्ट्रोनॉट्स की, हाँ, जो स्पेस की नॉलेज है ना, एस्ट्रोनोलॉजी, इसकी बहुत होनी चाहिए। अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, होना चाहिए। बहुत सारे अब तो बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं दैट आर कंट्रीब्यूटिंग वेरी नाइसली, and Faiza has suggested at least half an hour. Okay, हर एज के साथ डिफरेंट है, but I would recommend at least not for 2 years, क्योंकि brain अभी बहुत छोटा है, it is developing, brain has to learn and understand the concept from the outside world. उसके बाद आप हल्का सा start कर सकते हैं, but try करें जब
Acha, I have observed a very common thing. Whenever a child is throwing a tantrum, parents tend to give the phone at that time. So we should tell them that one should restrain or refrain from giving phone at that time. Sorry, just a tantrum. I'll be back. Sorry. Yep, so सॉरी। अच्छा, टेंट्रम्स के टाइम पे क्योंकि बच्चे को खुद अपने इमोशंस और अपनी चीज़ें नहीं समझ आ रही, अगर उस टाइम हम उन्हें फ़ोन पकड़ा देंगे तो नंबर वन दे वुड नेवर बी एबल टू रेगुलेट देयर इमोशंस, और उनको लगेगा कि हमेशा जब मैंने रोना है, जब भी मैंने कुछ करना है तो मुझे फ़ोन मिल जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना। आप मुझे पता है समटाइम इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, यू आर स्टक इन सच अ सिचुएशन। सॉरी, दिस नॉलेज is useful for you even if you are a parent, or if you are not, you can always share it with your parents, being an educator, कि why screen time and tantrums handling are important. And then अगर टेंट्रम आ रहा है उसमें तो फुल ट्राई करें कि स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1 2 3 एटलीस्ट 4 टाइम्स, फोर्थ और फिफ्थ टाइम पे टेंट्रम में द चाइल्ड विल बी एबल टू रेगुलेट हिज इमोशन बाय देमसेल्व्स। स्क्रीन टाइम क्यों कहते हैं कि लिमिटेड होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसे कार्टून्स हैं, फॉर एग्जांपल कोकोमेलन, अगर किसी ने देखे हो, दे आर वेरी कलरफुल एंड ब्राइट। कोकोमेलन जैसे बहुत सारे चैनल्स एंड कार्टून्स, दे आर, आई हैव सीन, they are available on the YouTubes and with the very nice music, very flashy colors and everything. But if a child is watching a Cocomelon or such type cartoons for even 2 minutes, the amount of dopamine is a hormone that is releasing from his mind is equivalent to 4 hours of play. अगर आप बच्चे के साथ 4 hours खेलेंगे, एटलीस्ट 4 घंटे खेलेंगे, तो उसको जो खुशी तब मिलती है वो उस तरह के कार्टून्स देखने से 2 मिनट में ही मिल जाती है। तो आप इमेजिन करें कि ये कितना ज़्यादा गैप है। तो इसीलिए अगर हम बच्चों को इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम और ऐसे कार्टून्स देना शुरू कर देंगे, तो उनको जो 2 मिनट में द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस दे आर हैविंग इन 2 मिनट्स, वो तो उनको 4 आवर्स में मिलती है, तो दे विल अल्टीमेटली लूज देयर इंटरेस्ट। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सच कार्टून्स आर डेंजरस। Ab there are a lot of list of cartoons that you can recommend to their parents. For example, Blippi, Miss Rachel, Bluey, Peppa Pig, and a lot more, Miss Denny. And maybe there are little bit graphics, but they are very much on the informative side. I won't say कि बिल्कुल ना दे, because if something is there available हमारी ईज के लिए कुछ है और बच्चों की बहुत ज़्यादा लर्निंग भी होती है, तो it should be given, but for a limited period of time. Educational apps are there, बट देने से पहले या कोई भी आप डाउनलोड करते हैं, पेरेंट्स शुड गो थ्रू इट कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट और व्हाट सॉर्ट गेम्स विल बी देयर for the betterment of their kids. And now even YouTube Kids is available, where you can make a profile for your own child, and then you can just add the cartoons or the list of the channels they want to see. Moving on to the next slide, let's discuss about the advantages and disadvantages of screen time. Advantages: you have access of lots of educational content. Itni access हमें available है because trust me, I have learned a lot of things when my kid is watching cartoons, or I'm only looking, oh, I wasn't aware कि ये चीज़ भी होती है. She know the name of lot of vehicles and a lot of things जो मुझे नहीं idea था. So that is a plus point. बहुत सारा educational content है, and just like a participant said कि उन्हें बहुत सारा space के बारे में information मिलती है. What is the astronaut? जो as an educator हमें थोड़ा सा difficult लगता है to explain. बहुत सारे concept ऐसे हैं कि हमें नहीं समझ आता कि अच्छा आज हम क्लास में जा रहे हैं तो हम कैसे explain करेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो अगर हम उसकी वीडियो दिखा दें बच्चों को, बहुत सारी सिंप्लीफाई वीडियो और एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर हम उसकी पहले वीडियो दिखा दें लाइक इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ द स्टेम, तो वो हमारे लिए भी ईजी हो जाता है और बच्चे के लिए भी ईजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन only verbally or even by using pictures. So video makes it easy. And then screen time supports learning with visual and sounds, better understanding ho jati because there is visual for everything and sound for everything. And it can enhance the digital skills when guided.
Disadvantage may reduce physical activities, very obvious, because the kid will only be stick to the screen time. और उसको वही वाली बात, उसको जो happiness screen time से मिल रही है वो उसको बाहर खेल के तो उतनी देर में आएगी भी नहीं. It can impact sleep and attention. अच्छा, बहुत सारी researches मैंने go through की हैं और उनमें mostly में यही recommended है कि at least screen time should be taken away 2 hours prior to sleeping. So if your kid is sleeping at 10, the time should be start minimum by 8. So at least the brain has a time to function normally in those 2 hours. And then less time for social and hands-on play. क्योंकि फोन में ही इतना मजा है कि बाकी किसी एक्टिविटी में तो उनका दिल ही नहीं लग रहा. Anybody of you wants to contribute any more thing regarding advantages or disadvantages of screen time? Or you can even contribute any more informative channel that you would like to suggest to your kid or to your parent. खुद कोई personal experience किसी का हो तो please go ahead. You can even speak if you want to or contribute. If someone of you is having a kid in this participant, they can share their personal experience. कि उन्होंने देखे हों कोई cartoons and then later they acknowledge मैं that those शेयर cartoons करना were चाह not रही हूँ, good. एक चीज Mm-hmm. मैं शेयर करना चाह रही हूँ. Sorry? तो बच्चों की जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ वो थोड़ा चैनल से हटकर है. अगर बच्चों की क्रिएटिविटी को थोड़ा सा अप्रोच देना है कि सिर्फ आपके सिर्फ फैमिली मेंबर्स आपकी क्रिएटिविटी ड्राइंग नहीं देख रहे बल्कि पूरा पाकिस्तान आपकी ड्राइंग देख रहा है, तो व्हाई डोंट यू सजेस्ट योर किड टू मेक अ ड्राइंग एंड ईमेल टू द यंग वर्ल्ड डॉन. ये बच्चों को Mm. बहुत बूस्ट मिलता है इससे बच्चों को. और बच्चे अपनी Mm. छोटी छोटी पोम्स अपनी छोटी छोटी क्रिएटिविटी वगैरह जब वो डालते हैं ना तो एक उनका क्रिटिकल थिंकिंग का जो आइडिया है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है. ये Mm. मैं स्क्रीन टाइम से हट के बात कर रही हूँ. न्यूज़पेपर यंग वर्ल्ड आता है डॉन में, Yes, very good, very उसके good. वर्ड सर्च करवाएं बच्चों के. आज भी मैंने करवाए तो कोई 13 वर्ड में से सर्जिकल वर्ड थे वो सारे. तो उसमें से एटलीस्ट उसको गो थ्रू हुई वो 6 या 7, जैसे थर्मामीटर, इनहेलर, सीजर, व्हील चेयर, Mm-hmm. Very इस informative. तरीके के वर्ड. वो यहाँ पे डिफरेंस करने से बच्चे की क्रिटिकल जो बच्चे के होता है ना डिफरेंस देखने से, उससे भी बच्चों का माइंड जो ब्रेन होता है उसके जो सेल्स होते हैं बड़े शार्प हो जाते हैं. Exactly, जो very good. डिफरेंस आता है ना आप स्लॉट द traditional डिफरेंस. आप traditional teaching से हट के कुछ भी करेंगी that the kids will learn it and it will leave a everlasting impact on their mind और वो बहुत excited भी होंगे करते हुए और उन्होंने definitely just like you said suggested कि at least 12 different vocabularies थी तो उन्होंने at least 2 तो learn की होंगी. 5 4 तो कर लेते. हाँ 2 भी मेरे लिए बहुत है. It's usually leaves a very long lasting impact on their mind. So that is why I was recommending कि at least कुछ ना कुछ activities होनी चाहिए hands on play. साइंस में तो हमेशा वो बहुत ज़्यादा enjoy करते हैं. Moving on to the next slide. Acha, last slide. It was related to the critical reflection of the lesson plan. I know every one of you is aware of a lesson plan you are already making or you should be making. Last session may we discussed about the type of lesson plan, the type of methodology that we can use, and the observation. Now, this is very important part. It is related to a lesson plan. When you guys do a lesson plan, do you have column or template at the end where you discuss how did the lesson plan went? आप लोगों के लेसन प्लान में ऐसा कोई टेम्पलेट होता है वेयर यू डिस्कस कि आज का जो लेसन था और आज का जो आपका जो स्पेसिफिक पीरियड का स्लॉट था, हाउ वाज इट, व्हाट वाज द लर्निंग, व्हाट वाज द फ्लॉज?
Have you guys noticing or writing something in your lesson plan? इस आउटकम में आ जाता है ना, आउटकम्स में आ जाता है, असेसमेंट आउटकम में। Outcomes, like there are two outcomes, learning outcomes of your children, and then are you even mentioning your outcomes or your critical reflection on your lesson plan? असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उसमें हम मेंशन कर देते हैं कि हाँ बच्चे एक्साइटेड थे इस एक्सपेरिमेंट से, इस चीज में बहुत इंटरेस्ट शो किया, काफी क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए, इस तरीके का। हाँ, आप कौन सी की exactly. बात कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही मोस्टली ऐसे ही होते हैं. सो एट द एंड ऑफ एवरी लेसन प्लान वी हैव टू रिफ्लेक्शंस टू डू. नंबर वन इज रिलेटिंग टू द लर्निंग आउटकम्स, बिकॉज आई नो एवरी वन ऑफ अस इज अवेयर कि हम बच्चों को हमने जो भी प्लान किया होता है 100% कभी भी उसके अकॉर्डिंग लेसन इज नॉट अचीव्ड, राइट? स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट सम एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंटेशन, देयर आर डेफिनेटली सम फ्लॉज. So something is about that, and then before starting any lesson, we have some learning objectives in our mind that okay, today I'm entering the class with this list of lesson plans. So at the end of lesson plan हम mention करते हैं कि क्या learning objectives थे, just like you said कि बच्चों ने क्या सीखा, enjoy किया, कि कैसी हमारी implementation गई. And then there is a column about our critical reflection. कि when we were conducting the critical reflection, what worked, what didn't, and why. उस लेसन प्लान की बेसिस पे हमेशा वी कैन ऑलवेज डू द एक्सटेंशन ऑफ आवर लर्निंग, या हम उससे हमेशा इंसाइट ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल शेयर अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. जस्ट इट हैपेंड विद मी yesterday, sorry, the last week. So I was very excited. The kid age group were 4 to 5. My lesson plan was to tell them a little bit about the chemical reaction. What are the chemical reaction in fumes? So I decided let's make a rainbow volcano. So we will be using different colors. I provided clay or Play-Doh to every student, and they will be making a volcano. And then we will put little bit of colored water inside the volcano, and they will be throwing the baking soda inside, and then fumes and a chemical reaction will be there. अब हुआ क्या? I thought of doing into certain groups. Either the ratio we have is one educator with 11 kids. So it's the ratio is 1/11, and we at least have one educator with us. So that day I was having a group of 14. So I thought, okay, 7/7. पहले seven का ग्रुप के साथ हम कर लेंगे और फिर 7 नेक्स्ट ग्रुप के साथ कर लेंगे. अब होता क्या है कि जब ऐसा केमिकल रिएक्शन ये हमने कुछ शो करना होता है, वी ऑलवेज डू द मॉडलिंग. हम एक दफ़ा बच्चों को खुद एक्सप्लेन करते हैं, ओके दिस इज हाउ वी गोना परफॉर्म इट एंड देन यू विल बी डूइंग नेक्स्ट. बट ये तो आप कह रहे हो, व्हाट अबाउट द एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी? आप बच्चों की वो होल्ड नहीं कर सकते. ऐसी एक्टिविटीज में नोबडी वांट्स टू वेट, कोई भी नहीं चाहता कि वो सेकंड ग्रुप का पार्ट हो. सो व्हाट हैपेंड कि मैंने तो 7 के लिए आई प्लान्ड इट इनिशियली, बट व्हेन आई वाज डूइंग द रेस्ट ऑफ द अदर किड्स जम्प्ड इन एंड इट वाज अ कंप्लीट मेस. I give um I give the little jars of color vinegar to everyone, but I forgot about the dropper, that I should be giving a dropper. So what they did, they were pouring all the jar into the volcanoes, and then they were just, instead of using the spoons, they were throwing the baking soda, a lot of the baking soda into the volcano. So जो complete activity plan की थी, उसके complete opposite ही सब कुछ हो गया. There was a complete chaos. All the colors were inside the tub, and it was very difficult to make. So sometimes ऐसी activity में you usually fail. अब इससे मैंने वैसे realize किया कि what was my fault was it was very difficult for me to control the excitement. I should have, sorry, I should have divided the work into two tasks. Sorry guys for the distraction. ये देखें, ये मेरी critical reflection है. I have prepared a lesson and I am
unable to deliver it properly because of my kid, because she's not sleeping today. So that's my critical reflection. ये मेरा flaw है आज का. So coming back to the point कि समटाइम ऐसे होता है कि बिल्कुल वो नहीं हुआ. तो मैं इतनी एक्साइटेड थी इस एक्टिविटी के लिए कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, केमिकल रिएक्शन हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो सका बिकॉज सबको ही करना था एट अ टाइम. सबको ही बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा चाहिए था, एंड दे वर थिंकिंग द मोर बेकिंग सोडा दे विल थ्रो इनटू द विनेगर द मोर fumes will come out. बट ऐसा भी नहीं हो रहा था एक सर्टेन अमाउंट के बाद. And I have used jar of colors instead of using droppers. So that was a complete mess. So that was my critical thinking, what didn't work and why. तो उस लेसन प्लान में मैंने अपना मेंशन किया कि आई शुड हैव डिवाइडेड दिस लेसन इन 2 days. कि फर्स्ट में मैं ऐसे करती, सिर्फ क्ले से या प्लेडो से मैं सिर्फ वॉल्केनो बनवा लेती, एंड नेक्स्ट डे वो रिएक्शन कर लेते, तो मेरे लिए इजी हो जाता. अब एट अ टाइम सब कुछ हैंडल करना, इट वाज कंप्लीट मेस. So in early years, especially early years, the lesson plan does not go at least 7 out of, not 7, let's say, let's keep on a safe side. 5 out of 10 doesn't go as you planned. So anybody of you wants to share any example where the mishap or flaws happened with them? अभी आपने साइंस या टेक्नोलॉजी या मैथ्स या कोई भी ऐसा एक्टिविटी प्लान की हो एंड देन इट did not work or it did not go what you planned, and then you were like completely disappointed? Let's talk about in any age group. Anyhow, लेकिन जब आप नोट करेंगे कि whenever you are doing the activity part, whether it's science, technology, engineering, or maths, you will be facing some of the flaws in it or anything. So in early childhood, I suggest reflect on how children responded to that activity. You can do it either by observing them using any of the observation method. What is meant by critical thinking? Okay, so critical thinking is about the lesson plans. Once you are done with the lesson plan, you think or you reflect upon yourself, what worked, what didn't, and why. Just like I shared an example, I had completely planned a lesson plan, but it was a complete chaos because I was unable to handle the kids and the activity did not go as planned. सो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में आप देखते हैं कि जो आपका लेसन प्लान आपने सोचा था कि ये 100% हमेशा वैसे ही इम्प्लीमेंट हो जाता है, हमेशा क्या उसका वैसे ही लर्निंग आउटकम आ जाता है? बिकॉज वेन एवर यू आर राइटिंग ए लेसन प्लान, देयर आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, देयर आर लर्निंग आउटकम्स. आप हमेशा हर क्लास में इस माइंड के साथ जाते हैं कि आज मैं बच्चों को ये पढ़ाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि वो ये सीख लें. Okay, so Naveed Zainab has commented, I didn't experience such activities. So which grade are you dealing with? Okay, so someone has suggested it usually happen when we plan any activity like color week, animal week, kid or too excited, and in that case activity usually not possible at once. Yes, it happens a lot. और वो इतने excited हो जाते हैं, sometimes it's very difficult to confine their excitement and they're not willing to listen to you. So it's very common. Or yes, I hope you understood by this what I mean by the critical critical thinking कि how did you go in that lesson, आपकी क्या contribution थी इसमें. And if it didn't work, that's fine, you can always extend the lesson plan, you can always do it. और आप हमेशा अपने extension और लेसन प्लान में एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग में लिख सकते हो कि ये आपके फ्लॉज थे, एंड मे बी अ वाइल और मे बी अ वीक और मंथ बैक यू कैन ट्राई with this learning or with this lesson plan again by using new methodology.
Okay. So in early childhood, reflect on how children responded to the activity. Observation is very, very important. I am sure that all of you, those who are in early years, especially, they're asked to present a observation for every term. Sometimes there are 3 observation or 5 observation. So it's very important that you observe the kid, because at the end of the day, अगर बच्चों को नहीं आ रहा, so trust me, it's on you. It's the educator. Because हम बहुत especially in Pakistan or Asian countries, हम बहुत easily कह देते हैं कि ये तो बच्चा है ही ऐसा, इसको समझ नहीं आ रही. But no, that's not the issue. Every kid has the capacity or capability of learning, but in a different method. So it's on you as an educator that how you can weigh them, how you make them learn about it. Uh, Huran has commented, I have faced an feeding class in Nazra class. So what was it? Do you want to share or elaborate the details? What did you face it in Phoenix class? I am teaching secondary classes. Secondary are completely different. They are independent students, and they have a lot of education and they need to learn about a lot. But do you know one thing? When I was doing my master's, there was our instructor. Whenever he used to, I was doing a course about services. So वो हर क्लास में आने से पहले, before coming directly to the topic, I wasn't aware. हमें नहीं पता होता था कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे. बट वो हमेशा क्लास में जब एंटर होते थे, they used to give his real life example कि मेरे साथ ये हो गया और मेरे साथ ये सर्विसेज थी और ये था, and then he relate it with the theory. तो आई स्टिल रिमेंबर, ऐसे हमें कॉन्सेप्ट्स बहुत देर तक याद रहते थे. So if you're handling or teaching secondary or bigger grades, you can always share a real life examples, because I know those kids don't need any activities like art and craft or something. They're already grown up. But you can always share a real life example and then can relate it with the concept for the deeper understanding. So in early childhood, critical reflection is important because you need to see. हाँ, that's very good. Because क्योंकि जब आप share करते हो तो it develops the communication, and that's very important because students are great communicator and they enjoy the lesson. और आप understand भी कर सकते हो कि what's going on और कितना understanding और capability level है student का, कि कहाँ तक उसने आपकी बात को समझा है. Yes, exactly. It helps us to, like, I know it helps you to explore, or sometimes आपको पता है, when you are sharing with the student, you can always use the method of inquiry based learning. You keep on asking question on question. जैसे हम कहते हैं ना कि बात से बात होती जाती है. अगर आप बच्चों से कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ कह सकते हो. That's very common. Huran has commented, everybody wants microphone in their hand, और हर किसी को अलग अलग तिलावत करनी थी. It was very difficult for me to handle. होता है. Just like I mentioned before, in such situations, बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुनते. And sometimes as an educator, you see yourself failing कि हम कैसे कैसे communicate करें, उन्हें कैसे समझाएं, because they are not listening. And then you are completely devastated how to explain the concepts to them. So ये मेरे साथ हुआ कि curiosity को confine करना, it is very difficult, and we can only talk through it with patience, because no matter what happened, at least at 2 years of age, you should never be strict, loud, or shatter their confidence, because उनकी development पे or critical thinking पे it can affect badly. So in such situation, you only have to be patient how to deal with them. And then critical reflection is important because it helps um, what can we improve and how can we better support individual needs next time. Does any one of you have dealing with any special kid in their class, special like any autistic or dyslexia kid in their class?
अगर है तो I just really want to know how you are handling those kids, because I know Pakistan में तो बहुत easily the institute are giving admissions, and we as an educator are asked to take care of them. So if anybody of you is having any challenging kid, then how you are dealing those kids if you are having. You can always speak in the mic and share your ideas. यस ऑफ कोर्स एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ था कि स्टार्ट में ना एक हेयरिंग इशू था एक लाइक बॉय को, और कुछ बच्चे होते हैं जैसे लाइक हाइपर एक्टिव होते हैं, दे स्टार्ट बुलिंग, और वो फिर Mm-hmm. बच्चा जो है वो लाइक उसकी एयर मशीन को छेड़ना या उतारने की कोशिश करना। Oh, So that was very difficult for me to handle like that situation. लेकिन फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा like next day आकर इस्लामिकली भी चीज़ों को elaborate करना किया, positively elaborate किया, like आप socially एक दूसरे से अगर आप अच्छी तरीके से behave करें तो आप well connected हो सकते हैं। किसी से दोस्ती करने के लिए उसको तंग करना important नहीं है, आप अच्छे तरीके से behave करके, अच्छे तरीके से greet करके, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से sharing करके आप जो है ना वो लाइक mm-hmm. कर सकते हैं। तो वो थोड़ा-सा फिर मुझे लाइक हेल्प आउट हुआ, लाइक थ्रू कन्वर्सेशन, और लाइक उनको प्रॉपर्ली जो है ना वो लाइक काउंसल करना पड़ा कि इस तरह से अगर Mm-hmm. हम बुली करते हैं तो वो इस्लामिकली भी गलत है, और एक लाइक एक Mm-hmm. बच्चे के साथ भी जो है ना वो उसको इमोशनली वो वीक हो जाएगा मज़ीद लाइक बेहतर होने की बजाय। And what about that kid? वो device लगा के was able to listen to you carefully or clearly? Yeah, still he was having some listening issues. Yeah, was he okay with the अ device? नहीं, एक्चुअली वो ये था कि हम उसको आगे बिठा लेते थे, लेकिन ब्रेक में और लाइक ऑफ टाइमिंग्स में उन चीज़ों को ना लाइक मैं हैंडल करना और मैनेज करना ज़ाहिर है एक सिंगल टीचर के लिए तो वो एक अपनी क्लास के लिए वो Definitely. लाइक आते हैं। तो वो फिर उसमें वो चीज़ें काफ़ी थोड़ी क्रिटिकल हो गई थी, तो जिसकी वज़ह से वो शायद बच्चा बुली भी होता था, और लाइक उसको इस तरह से तंग करना, दूर से आवाज़ देनी, बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट साइड से आवाज़ें देनी, सेम सेम आवाज़ें। तो वो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए थोड़ा-सा करना पड़ा, लेकिन ये कि ऑल लाइक पढ़ाई में वो बच्चा काफ़ी था, लाइक ब्रिलियंट भी था, और वो हम आगे That's बिठाकर nice. उससे चीज़ों को लाइक एक्सप्लेन भी करते थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चंस के आंसर भी करता था। दैट्स आई लाइक इट। That's very good. That's very kind of you. क्योंकि बहुत सारे examples I have looked onto where the educator become very strict with the other kids, which I believe कि उसका कोई फायदा नहीं होता if you are being very strict. So you took the very good approach that you talk through and be patient or help the kid throughout of it. It's very difficult क्योंकि because हर तरह के बच्चे हमारे पास होते हैं and it's up to us that how we handle those kids. Thank you so much. Muhammad Yasin has commented, amazing session. Thank you so much. आई बिलीव अर्ली चाइल्डहुड में एक सबसे ज़्यादा इश्यू जो हमारे पास और आता है ना वाइल वी आर प्लानिंग अ लेसन प्लान। अच्छा, अगर हमारे पास बड़े ग्रेड के स्टूडेंट होते हैं फ्रॉम द ग्रेड +5, तो इट्स ईजी फॉर एजुकेटर एज वेल कि आप आते हो, आप दिन का कॉन्सेप्ट कन्वे करते हो एंड देन दे गो होम एंड लर्न इट, क्योंकि वो उनके लिए याद करना आसान है। बट टिल grade 2 it is very difficult because we are not supposed to ask them to do the cramming only. हमें सिर्फ उन्हें रट्टा या cramming के लिए नहीं कहना. We need to make the concept clear. Or second, early years, like it is very important that they understand every concept and they should be very confident. अगर वो कोई गलत बात भी कर रहे हैं तो they should be very confident about it. और उन्हें उन्हें कहते हुए और उन्हें शेयर करते हुए there shouldn't be any fear कि हम कुछ ऐसा convey कर रहे हैं that we should be shunned down और हमारा कॉन्फिडेंस शटर हो जाएगा। सो इसीलिए ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द किड। Many time I have seen such kids when they come into an institute they were better, but at the end of the term they are completely different person because of the educators, because they are ignoring them, or sometimes I have seen favorism going on. Maybe वो last grade में आप लोगों के पास बच्चा होता है and you believe um and you believe कि it's
एंड यू बिलीव के जो लास्ट टाइम था तो वही आपके पास दोबारा आ गया, दैट इज द ओनली किड। आई एम सॉरी, हुरैन हैज कमेंटेड हमारे यहाँ एक बच्चा था वो लेसन के दौरान हंस पड़ता। एंड दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। मुझे तो ऐसी सिचुएशन में उदासी आ जाए, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, बिकॉज समटाइम बच्चे कुछ ऐसी बात कर देते हैं और हमें एज ए एजुकेटर हमारा रोल होता है कि वी आर सपोज टू बी फर्म, लेकिन हंसी आ जाती है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आपने हुरैन इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया if he was laughing again and again? बच्चों के लिए भी तो डिफिकल्ट होता है तो स्टे फोकस। एंड एज यू सेड दैट कि लाइक बड़े बच्चों के का जो है ना वो आसान है पढ़ाना, देन आई बिल्कुल। वो एक डिफिकल्टी लेवल आई थिंक डिफरेंट होता है और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी डिफरेंट होता है। जहाँ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है वहाँ लाइक आई जस्ट एक्सपीरियंस दिस कि बड़े बच्चों को पढ़ाना जो है ना वो लाइक काफ़ी डिफिकल्ट इस लिहाज से होता है कि उनकी दोस्तियाँ, उनकी एक्टिविटीज़, उनका टीचर को रिस्पेक्ट करने का स्टाइल, उनका डरने का स्टाइल जो है ना वो काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है। और जब इतनी दोस्तियाँ वो बिहेवियर एट्रीब्यूट्स में आ जाती है ना चीजें, वो तो फिर हमें बिहेवियर वाइज उनको हैंडल करना है। और ये एज ऐसे होती है कि वो दे आर फियरलेस, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ देयर एजुकेटर्स एट ऑल। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहां पर तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज तो हर लेवल पे आई बिलीव। इवन अगर मुझे लगता है कोई मुझे भी पढ़ा रहा होगा या मुझे भी होगा तो उसको भी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज मुझे लगता है कि आई एम नॉट सच फोकस्ड पर्सन, मुझसे ज़्यादा देर टीचर की बात नहीं सुनी जाएगी। तो एजुकेटर को डिफ़िकल्टी तो हर लेवल पे आती है, लेकिन डिफ़िकल्टी तो आती है, लेकिन जो सेकंड ग्रेड तक है वहाँ पर डिफ़िकल्टी हमें थोड़ी सी ये भी आती है, बिकॉज द किड्स आर नॉट फुली independent, they are not fully expressive, they are not very good communicators, they don't know how to work on their own or express their things। फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसलेक्सिया का भी इशू आता है, स्पेलिंग्स इशू, vocabulary issue, and lot of other things। And the most important or major difficulty which we face being early year teacher is लेस कंसंट्रेशन स्पैन। हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि उनको कैसे हम इस चीज़ पे मतलब कंसंट्रेट और या फोकस करवा सकें। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि एक्टिविटीज़, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक्टिविटी एंड ओनली एक्टिविटीज़, क्योंकि अगर हम आएंगे और हम कंप्लीटली बोलते जाएंगे, they will not listen and they will not learn anything. So difficulties, yes, you are right, they are there at every level, but under 2 and grade 2 और under 2 हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए because they are not independent as rest of the grades। तो यहाँ और क्योंकि हम उनकी बेस बना रहे हैं, we are responsible for their ways। if you are having a kid in play group or kinder, तो आप phonics, उनकी alphabet recognition, everything is on to you। तो अगर कोई बच्चा नेक्स्ट ग्रेड में जा रहा है और उसको नहीं ये सब आ रहा, then you as an educator has failed in it। Okay, so Excuse yes, sorry। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हुरैन। वालेकुम उस बच्चे अस्सलाम। जी, जो उस बच्चे के बारे में मैंने डिस्कस किया, उसका जो है थोड़ा-सा इशू ये था कि हम शुरू-शुरू में हमको खुद समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये बच्चा जो है ये टीचर को एनॉय करने की कोशिश कर रहा है या इसके साथ कुछ मतलब। बाद में जब पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया तो उसके साथ थोड़ा-सा था, कुछ न्यूरो का मसला था। तो उसको हमने इस तरह से ओवरकम करने की कोशिश की थी कि उसको हमने बिल्कुल वही, जैसे अभी थोड़ी देर पहले टीचर ने भी बताया कि उसको बिल्कुल फोकस पे रखा, मतलब फर्स्ट फ्रंट पे रखा। और दूसरे, अपनी फैमिली में भी वो बहुत कम इंटरेक्ट करता था। उसके पेरेंट्स हमेशा, जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती तो वो कहते कि ये बहुत अजीब सा, यानी इसका वो है कि ये जब एक बार रिजर्व हो जाता है तो ये इंटरेक्ट नहीं करता, इवन के पेरेंट्स के साथ भी बहुत कम इंटरेक्ट करता था। तो हमने उसको जो है स्कूल में ही आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की, हालांकि थोड़ा सा टफ था, बट उसकी फ्रेंडशिप की, यानी उसको जो स्टूडेंट्स पसंद थे जिसके साथ वो फ्रेंडशिप करना चाहता था, उस सिचुएशन की वजह से, उसके जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से वो खुद कह नहीं पाता था। तो जो स्टूडेंट्स उसको पसंद थे उसका हमने अंदाजा लगाया कि जो उसको पसंद थे वो उन्हीं के साथ बैठता था, अल्टरनेटिव में बैठता था। तो हमने उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ उसकी ग्रुप बना दिया था आहिस्ता आहिस्ता। और फिर
एक और चीज़ इम्प्लीमेंट की थी कि उसको हमने छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थी, और आप यकीन करें 2 से 2.5 साल के बीच में उसका वो जो मसला था वो भी काफ़ी हद तक जो है वो किया था। फिर जब वो अपने साइकेट्रिस्ट के पास गया था तो वो कहते कि इसके साथ आप लोगों ने क्या किया कि ये बच्चा अब मुझसे खुद बोलने लगा है, मेरे साथ खुद बात करता है। That's very good, very good. See, that is totally up to the educator. आपने कैसे उस बच्चे की और उस पेरेंट की लाइफ में you were such a blessing, you guys, कि आपने उसके लिए completely life change की. So this I was saying throughout yesterday's session or today's session that it is totally up to the educators. आपने observe किया, you identify the cause that he is laughing और आपको समझ नहीं आ रही थी, and then you have a session with the parent, and then you came to know that he's having a little bit of neuro difficulty, and then you reflect and then you devise accordingly. So it's very important. Very good. That was such a good approach, and over the time you guys remain consistent, or you helped him out in overcoming this thing. So इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता होता है कि कहाँ से बच्चा कहाँ चला गया. हमारा एज एन एजुकेटर हमारा काम ये नहीं है कि वी कम इन द क्लास और हमेशा हम बस डिलीवर करके चले जाएं. माशा वालेकुम अस्सलाम मैम, काइंडली ये PDF ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा. डेफिनेटली आई विल पास ऑन टू द सर एंड आई आस्क हिम टू शेयर इन योर groups. So that was my 2-day lesson regarding methodologies and completely lesson plans, focusing on observation and critical thinking. So I am all up for here. If anybody of you wants to ask any question or share any situation, more than welcome. You can talk about it. Assalamu alaikum. I just want Walaikum to share and give a suggestion. You can say that कि every आप ये थोड़ा जो कोई भी आपका ये जो एड्रेस होता है या जो लिंक होता है जो सेशन का, वो कुछ टाइम पहले सेंड किया करें, या जैसे 5 to 10 आवर्स पहले, ताकि जो ये है जो भी सेशन का लिंक है ना, ये हम मैं जो हूँ वो PhD स्टूडेंट हूँ, और तो फिर हम अपने ग्रुप्स में भी सेंड कर दिया करें. और आई जस्ट अप्रिशिएट कि जो फैमिली अगर मैं फैमिली मेंबर भी हूँ तो वहाँ पर भी किया जाए, और कि मैं चाहती हूँ कि टीचर्स के अलावा पेरेंट्स भी इस तरह के सेशंस में ना आप पार्टिसिपेट करें, ताकि वो टीचर्स के भी एफर्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकें, और सेकेंडली जो सारे दूसरे टीचर्स हैं या हायर एजुकेशन के भी टीचर्स हैं, और हमारे MSK में भी जो हैं वो गवर्नमेंट टीचर्स हैं. तो आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट दैट कि अगर ये कुछ टाइम पहले सेंड किया जाए ना लिंक, तो सब अपना स्टेटस भी पुट इन करें, और सब फोर्सफुली अप्रिशिएट करें सबको कि आप आएँ, और पेरेंट्स स्पेशली फैमिली के जो सारी फीमेल्स हैं, इसको अटेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ सके, और आप बता सकें कि जो बच्चे हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड में जो स्टूडेंट्स हैं, उनको टैकल करना जो है ना वो एक सिंगल पर्सन की एफर्ट नहीं है, उसमें पेरेंट्स को भी एफर्ट करनी पड़ेगी, और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए सिर्फ एजुकेटर्स ही काम नहीं करेंगे, बल्कि पेरेंट्स को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा. और definitely ये it's a slow and ongoing process, and for this everybody's effort is required, and I would highly recommend कि हम अपने institute में कह सकते हैं कि at least monthly basis पे we should invite parent, because you know that's a complete triangle. Child is on the top, and then parent and educator, they all work together to achieve a common objective. तो अगर हम बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हैं और पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, then it's very difficult to achieve that goal. So it's important कि हम at least month में कोई मीटिंग करवाएं. बिल्कुल ऑनलाइन सेशन रखने चाहिए पेरेंट्स के लिए, क्लास टू क्लास, जैसे हमारे क्लास टू क्लास ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उसमें जो है वो टीचर्स को अप्रिशिएट किया जाए कि वो आप पेरेंट्स को जो है ना वो इनवाइट करें, और इस तरह से सेशंस हों ताकि वो अपना एज अ स्टेक होल्डर अपना रोल प्ले कर सकें इंडिविजुअली. डेफिनेटली क्योंकि अगर हम एज एन एजुकेटर अगर हम बच्चों को कुछ भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इन अ क्लास, अगर घर जाकर पेरेंट्स आर नॉट री इन्फोर्सिंग दैट कॉन्सेप्ट, बच्चे को भूल जाएगा. इट्स वेरी सिंपल.
साथ. सो पेरेंट रोल इज इक्वली इंपॉर्टेंट. और बहुत सारे पेरेंट्स को तो मैंने ऐसा कहते सुना है, दे आर सेइंग कि लाइक हमने तो बच्चे को 6 आवर्स और 7 आवर्स के लिए स्कूल भेजा था, तो ये इसका बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है. बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बट इट्स नॉट द एजुकेटर अलोन, पेरेंट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो देयर शुड बी वेरी वेरी गुड सजेशन. Either you are having WhatsApp group or anything, so you should be discussing everything with the parent कि हमने ये ऑब्जर्व किया पॉजिटिव साइड, हमने ये ऑब्जर्व किया, इट वाज वेरी गुड, अब हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं. और उससे रिलेटेड पेरेंट का भी कंट्रीब्यूशन है कि क्लास में तो ये ऐसा कर रहा था, व्हाट अबाउट हिज होम एक्टिविटीज, क्या ये कंट्रीब्यूट कर रहा था कि नहीं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एज एन एजुकेटर एंड वर्क टुगेदर विद द टीम, बिकॉज यूजली होता ये एट द एंड ऑफ द टर्म parent come up with a lot of complaints and everything कि हमारा बच्चे ने तो ये नहीं सीखा, ये नहीं सीखा. तो it's very important कि हम timely उनको indulge करें with what is going on. इसके लिए important है that you should be observing the kids. Yes. सलाम अलैकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम नवीद बात कर रहा हूँ साहिवाल से. जी जी तो सर. मैम इसमें ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, क्रिटिकल थिंकिंग, तो इसमें ये जो अभी पेरेंट्स की बात हो रही थी या टीचर की है या स्टूडेंट्स की है, कम्युनिटी जो भी हो, तो मैम ये इतनी अच्छी ये कह लें अप्रोच है ना, तो ये सिर्फ स्टडी के लिए नहीं है, एजुकेशन के लिए नहीं है स्कूल को, बल्कि सबकी लाइफ के लिए. अगर ये अप्रोच हमें पैदा कर दी जाए तो हमारी जिंदगी इतनी आसान हो जी जाए. सर तो बिल्कुल. हम वट से वाई पे आए, वाई से हाउ पे. तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का ये मॉडल है. और बिल्कुल सर. दूसरा है लुक थिंक एक्ट, यानी ये साइक्लिक चलता है और ऑन गोइंग है. तो ये तो हर बात में होना चाहिए. तो यकीनन मैं खुद भी ये लैग करता हूँ ये पेरेंट्स के हवाले से कि जितने जो पेरेंट्स है ना, वो ना ऐसे 0.25 मार्क्स पे भी ना उधर डिस्कस कर रहे होते हैं ना, जब पेरेंट बिल्कुल टीचर एग्जैक्टली. मीटिंग होती है. तो ये सारा ना सारे जो स्कूल्स हैं वो सारा समझते हैं बिल्कुल. ये सारा इस तरह वो बहुत सारे लोग सर्टिफाइड भी होते हैं सारा, लेकिन ये पेरेंट्स जो है ना, ये बहुत सारी चीजें जो है ना वो मतलब टीचर्स के कंट्रोल में नहीं है. तो पेरेंट्स ये कंपटीशन जो है ना, ये वाला अर्ली एज में ही वो शुरू करवाते हैं ये लोग. तो इनकी जो बिल्कुल पेरेंट्स की जो है ना वो ट्रेनिंग होनी चाहिए इस सिलसिले में. तो वैसे हमें एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, जी. हमें बच्चों में, बड़ों में, सब में क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना वो होनी That is चाहिए. very important. तो Yes. एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन if Yes sir, you are exactly. critical thinker. Every problem has solution. आप जी सर बिल्कुल एग्जैक्टली. रूट काजेज हैं प्रॉब्लम, उस पे जाएंगे तो फिर सॉल्यूशन जो है वो फ्रेमवर्क उसको करेंगे. तो इस तरह ये बहुत अल्लाह करे हम सब ने ये सलाहियत पैदा हो जाए. तो बेशक सर. आपको अजर दे. आप बहुत जबरदस्त माशाल्लाह आपने वो एक्सप्लेन किया इसको. थैंक यू सर. अच्छा सर, इसमें एक पॉइंट है, जैसे आप कह रहे थे कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अंडरस्टैंड नहीं करते. अगर हमारे पास 20 चिल्ड्रन हैं इन द क्लास, तो आई एम अवेयर कि 5 ऐसे होंगे जो बिल्कुल इग्नोरेंट होंगे, उनको नहीं पता कि बच्चा क्या सीख रहा है, उनको दे डू नॉट इवन केयर कि क्या सीख रहा है. लेकिन 5 ऐसे होंगे जो थोड़े से क्लिंगी होंगे, और वो हल्की हल्की आपकी भी छोटी छोटी गलतियां लेकर आ रहे होंगे, बच्ची के भी छोटे छोटे फ्लॉज लेकर आ रहे होंगे. So how I used to handle those kids, उसका ये आप करें that you observe every positive thing. नेगेटिव ही करें बट डू नॉट शेयर दैट मच नेगेटिव विद द पेरेंट. उसकी हर पॉजिटिव चीज़ आप शेयर करें विद द पेरेंट कि आज आपके बच्चे ने ये किया, आपने ये देखा, आज उसने ये सीख किया. होता है कि आप पेरेंट के पीछे पड़ जाएं कि आपके बच्चे ने आज ये किया, लाइक पॉजिटिव थिंग कि ये उसकी प्रोग्रेस है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो ये सीख रहे हैं. टुडे आई एम वेरी हैप्पी ही टोल्ड द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड बाय हिमसेल्फ, इस तरह करके. तो आप रिकग्नाइज करेंगी कि पेरेंट को नजर आना शुरू हो जाएगा कि हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग इनटू दैट किड. जब उन्हें लगेगा कि दिस एजुकेटर हैज ऑल द नॉलेज अबाउट देयर किड, कि इतनी छोटी छोटी बातें भी नोट करें, तो डेफिनेटली वो कंसिडर करेंगी द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू आर पुटिंग इनटू इट. तो Okay. और
बाकी ये है कि हमें पेरेंट्स को साथ साथ लेके चलना है। अगर बच्चा जिस तरह डिक्टेशन भी होती है, कुछ भी होता है, एक दिन भी ही इज़ नॉट डूइंग वेल, शो योर कंसर्न कि वाई, कि क्या हो गया था, क्यों डिक्टेशन में आज नंबर सही नहीं आए, आज थोड़ा सा लेजी या डाउन लग रहा था, इज एवरीथिंग ओके एट द प्लेस। आप completely इंटरेस्ट शो करें what is going on in the kid's life. You should be owning the kid's life till the time he is there in your class. Only then the parent will be able to understand, और वो भी आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे, because we need to get the trust of the parent. और वो हम ऐसे ही कर सकते हैं when they believe that their kid is in our safe hand. So we educator should be observing the kids, working on the critical reflection, what things are working, what didn't go as planned, and what should be the extension of the learning, and gaining the trust of the parent. Only then we will be able to achieve those learning outcomes. Thank you everyone for being the part of the session. Well, sir can answer this question. That will the recording be available of this today's session? I'm sure he will be sharing the handouts or slides of the sessions with you. So before we end, any question anybody wants to ask? Thank you, Aran. Thank you so much, sir. जी अस्सलाम वालेकुम। जी sir. इस तरह के ये जो स्टेम और स्टीम, तो जी इसमें sir. अब वो यानी स्टीम में आर्ट भी आ गया है। जी sir, art. तो ये अच्छा, ये तो चलो होता रहता है डिस्कस। तो इसके लिए जो एलिमेंट्री लेवल की कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं, जैसे यानी यूट्यूब पे या इस तरह कुछ चैनल, आप तो माशाल्लाह सारा इससे होता है आपका, तो मतलब कोई इस तरह का है कि जहाँ से ये आप हमें एक्टिविटीज मिल जाएं, क्योंकि हम इसमें इतने तो होते नहीं है ना, कॉम्पिटेंट भी नहीं है और हमें इतनी इसमें अवेयरनेस भी नहीं है। तो इस तरह कोई ऐसा हो ना कि मतलब साइंस के हवाले से, मैथमेटिक्स के हवाले से, या किसी मतलब स्टेम की जो एक्टिविटीज जैसे दी जी जाती sir. है ना, बाकी जो पहले ये जो एक्टिविटीज होती हैं टेक्स्ट बुक्स पे या जो भी है, जी वो तो sir, I एक understand. ट्रेडिशनल है ना। तो इस तरह कोई स्टेम के हवाले से कोई एक्टिविटीज ऐसी हों कि वो बच्चों को दी जाए, तो खुद से जो उसको डेवलप करना, ये तो इसके लिए बड़ी एक्सपर्टी चाहिए। जी तो इस तरह सर, गाइड सर करें प्लीज। इसके मैं अभी एक दो एक्टिव वेबसाइट के नेम जो हैं वो भी शेयर कर देती हूँ सर के साथ, एंड आस्क हिम टू पुट देम ऑन योर ग्रुप। फॉर एग्जांपल जैसे साइंस बडीज एक वेबसाइट है, वहाँ पे अगर आप खोलें तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। और वैसे अब के ज़माने में सबसे अच्छी बात ये है कि वी हैव चैट जीपीटी, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट, यू जस्ट नीड टू राइट ऑन चैट जीपीटी कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई एम हैविंग और ये मेरा एज ग्रुप है, कैन यू रिकमेंड एनी साइंस एक्टिविटी। तो वो तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ दे देगा और हमें रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं। उसके अलावा आई हैव फ्यू लिस्ट विद मी जो अच्छी हैं, और यू कैन यूज़ दैट फॉर सर्चिंग सम नाइस activities related to STEAM and STEM for the early years. So I'll be sharing it with the sir. तो मैं उनसे कहूँगी कि वो ग्रुप पे उनके नेम्स और जो हैं वो लिंक अपलोड कर दें। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक नो ब्रो, नो वरी सर। Yes, nowadays ChatGPT has changed the world. वो तो कुछ करने की नीड ही नहीं है, you just need to write it down what you are looking up to. Even you don't even need to write it down, वो तो सुन ही लेता है. You just need to say to it that suggest me a list of this, और वो उसी वक्त आपको बता देता है. और बहुत सारे लिस्ट होती है, उसमें से आप देख सकते हैं कौन से आपके एज ग्रुप और क्लास के, क्योंकि आपको अपने क्लास के बच्चों का आइडिया होता है तो कौन से उसके अकॉर्डिंग है. And thank you so much, Umair Aftab. Thank you. Thank you everyone for being patient with me and bearing me. It was a great session. Ma'am? Yes?
मुझे चैट जीपीटी से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा कहना है अभी। जी यही जो आइडियाज़ का जो है सेशंस हैं, इस पे से एक सेशन हमने अटेंड किया था, उसमें मुख्तलिफ ये सारे टूल्स बताए थे कि कैसे हम अपना जो है सारा कुछ जो है चैट जीपीटी, वीडियो जीपीटी और ये सारा कुछ उन्होंने सिखाया था। लिटरली मैं आपको बताऊं कि मैं खुद स्टूडेंट जब थी, मैंने अपना जो थीसिस था, मेरा जो डोमेन है वो साइंस से थोड़ा सा चेंज है, मतलब मैं आर्ट्स इस्लामिक स्टडीज़ में मैंने मास्टर्स किया है। तो उस वक़्त मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बट उस वक़्त मुझे जस्ट मैंने अपनी एक फिर वही बात है कि अपनी एक टीचर जो थी हमारी, उन्हीं से हेल्प ली थी और उन्होंने यही चीज़ अप्लाई की थी। इट वाज़ 2022 जब मैं अपना मास्टर्स करी थी, उन्होंने यही चैट जीपीटी के ज़रिए से मेरा, क्योंकि मेरे जो टॉपिक थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और हदीस के सारे ऑथेंटिक वही नाइस आयात और उठा ली गई थी। तो खामखा जब वो चीज़ एज़ इट इज़ उठाई जाएगी तो प्लेजरिज्म तो जाएगा आगे बिल्कुल ऊपर। ऐसे ही एंड शी टेल मी, शी टोल्ड मी, उन्होंने स्टार्ट में मुझे ये चीज़ थोड़ी-सी वो की थी कि आपको इसको कमांड देना है, और वही चीज़ जो है, जो मैम थी उन्होंने फिर समझा दिया था। तो मतलब उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मेरा जो प्लेजरिज्म था वो 45% तक जा रहा था, बट चैट जीपीटी का वो जो कमांड्स को कैसे उसको लेके चलना है और उसको कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो और अपने जो इनपुट आप दे रहे हो उसको आप ओवरकम कर सकते हो। तो मेरा प्लेजरिज्म वो 19% पे आ गया था। दैट्स ग्रेट यही ना मैं वी आर ब्लेस्ड कि हम इस ज़माने में जहाँ इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है तो हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट बताना है सिर्फ हमें चैट जीपी को कहना है कि चैट जीपीटी कैन यू जस्ट सजेस्ट मी अ लिस्ट ऑफ साइंस एक्टिविटी for the age group of 7 to 8 year old with the group number of 10 kids and I have some challenging kids सिर्फ इतना बोलें and then the chat GPT will provide you a lot of information और क्योंकि लेसन प्लानिंग में देयर इज नो प्लेजरिज्म और कॉपीराइट्स तो हमें वो भी टेंशन नहीं है तो टेक हेल्प अगर इफ यू आर अनएबल टू थिंक बाय योरसेल्फ take the help from the chat gpt from the net so many websites I will sharing some of the website with the sir also बहुत सारी website और चीज़ें हैं so just like said कि we are in a very good era where technology is there so as an educator take hold and use of all those technologies and try to make कि आपकी वजह से there should be a change in a kid try to be that passionate educated और लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था इफ़ यू आर नॉट पैशनेट इनफ देन कंसिडर चेंजिंग योर फील्ड बिकॉज एक बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर दैट इज डिपेंडेंट ऑन you so you being an educator especially if you are in EYE you need to be very patient and passionate about it so if you're passionate enough only be in that field and try to make a difference in at least one or two kids ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नीड है इसकी so I hope that is the end of the lesson I hope you enjoyed it or maybe at least one or two learnings तो आप आज के सेशन से शायद कुछ गैदर करके जा रहे हो I really hope so and I really wish if you are in any grade you should be implementing or using STEM or STEAM in every day not every day at least try to do twice or thrice a week in your lesson plan and you will see a difference in your kids so thank you that's for all that's for now I'll just be staying for 1 or 2 minutes if anybody of you wants to contribute or ask anything मैडम sir मैडम ये चैट जीटीपी इंजीनियरिंग साइड पे भी उसकी कोई एप्लीकेशंस ये उसका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है मैं बेसिकली जी। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जी सर उसके पास हर चीज़ का नॉलेज है बस सिर्फ लिख दें क्या चाहिए आपको जिस तरह हम गूगल पे सर्च करते थे ना कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैट जीपीटी पे भी आप सिंपल लिख दें कि मुझे ये चीज़ चाहिए जो आपने सर्च करनी एवरीथिंग इज़ देयर सबसे बड़ा डेटाबेस है राइट नाउ एवरीथिंग इज़ देयर ऑन इट थैंक यू बस आपने ऊपर टाइप करके बताना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए अगर आप उसे कहेंगे कि मुझे रिसर्चेज और ऑथर का नेम और वेबसाइट का लिंक और रेफरेंस वो सब कुछ दे देंगे और बहुत इजी है इस
इस सेशन के बाद आप गूगल पे जाएं और लिखें ChatGPT और उसको खोलें और देखिए आपके पास क्या आता है एंड इसमें टाइप समथिंग, कोई भी एक चीज़ देखें और देखें, इट्स सो ईजी कि वो आपको नैनो सेकेंड